13 कर रहे सी रजे अमन आदमी होने नहीं शेयर कर देते। सो रजे ग्रुप 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ we discussed ionization energy। ਹੁਣ प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। प्रॉब्लम नंबर 2 says anhydrous aluminium chloride is covalent whereas its aqueous solution is ionic, explain why। ਹੁਣ देखो जी इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ S ब्लॉक ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो ये कहना की चाहते हैं कि अगर अपन ड्राई फॉर्म च एल्यूमीनियम क्लोराइड को लेने हैं तो इट इज कोवैलेंट और अपन ये लिखते हैं, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈਣੇ ਆ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਓਨਿਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। सोडियम पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव मिलके NaCl बन गया, डन। या वैसे ही इधर देखो H plus H gives you H2, ठीक है। H ज्यादा स्टेबल है लखवीर या H2 ज्यादा स्टेबल है? H2 मॉलिक्यूल बन गया, कौन ज्यादा स्टेबल है? जसदीप। H plus H की एनर्जी ज्यादा है या H2 की एनर्जी ज्यादा है? H plus H दी ज्यादा है because stability is inversely proportional to energy, ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਰਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੌਪਕੌਰਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਘਟ ਸੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ यानी कि H plus H की एनर्जी ज्यादा है, सो कुछ एनर्जी इथे रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। सो जब कोई भी बॉन्ड बनता है एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। उल्टा अगर A से H2 नु मैं H plus H दे विच तोड़ना है, ठीक है, तो मैनू वही बॉन्ड एनर्जी उसनु सप्लाई करनी पड़ेगी, क्लियर के नहीं। नाउ दिस बॉन्ड एनर्जी इज टर्म्ड एज लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इजी के नहीं? ठीक है। जो एक आयोनिक बॉन्ड बनता है जिहड़ी एनर्जी जिशन रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। उल्टा अगर उसी आयोनिक बॉन्ड नु मैं दोबारा तोड़ के ओदे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बनाने हैं तो वही लैटिस एनर्जी मैनू सप्लाई करनी होगी, डन। उन्होंने एक आंसर दे दो। एक मेरे को NaCl है, एक KCl है, ठीक है। लेट इट बी NaCl की एनर्जी इज, चलो आप हाइपोथेटिकल वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं। इस दी लैटिस एनर्जी is 250 kilojoules and KCl the lattice energy is 220 kilojoules, ठीक है। ये घट होगी क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ गया, जो साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ते स्ट्रेंथ घट जाएगी, है ना। बस मैंने एक आंसर दे दो। सुखमन इन्हां दोनों कंपाउंड्स दे विच वाटर दे विच ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा जी? सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। हाँ जी जसप्रीत, ठीक है आंसर। हाँ केड़ा सॉल्युबल होगा? KCl। यदि तो भाई पानी में पावांगे इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव या K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जो जल्दी टूटेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। पहले मैं भी गल के नहीं, सो KCl विल बी मोर सॉल्युबल। मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं? पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਰਜੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਲਦੀ? ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
ठीक है। हुन इसका एग्जैक्टली उल्टा कॉन्सेप्ट देखो, देखो जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਬਲੌਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, NaCl ਪਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ KCl, ਡਨ। ਇਹ ਹਲੇ ਸੋਲੂਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਐ ਘੋਲਦਾ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ Na positive and Cl negative. So KCl will break down into K positive and Cl negative. Done बजे? Side done. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਇਨਸ ਨੇ they will get hydrated with water. They will get hydrated with water, मतलब water molecules ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਮਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਾਬੇ ਮੌਸਮ ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। बस ये पानी च पाओगे तो चंगी तरह सलाबा हो गया, ठीक है। सो देखो दे विल सराउंड दिस, चलो Cl नेगेटिव का तो इत्थे रोल ही नहीं क्योंकि दोनों च इक्को ही है, दे विल सराउंड इट, डन। इस टाइम एक एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हुण ध्यान नाल सुन लो, इत्थों आपां ने रिजल्ट कढिया सीगा कि solubility is inversely proportional to lattice energy, done कि नहीं, तो ठीक है। हुन इत्थे की हो रहा देखो रे, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी एंड ਜਿਹੜੀ हाइड्रेशन एनर्जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is inversely proportional to size। चलो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ देखो रे हुन इस दे अकॉर्डिंग, हां जी, Na पॉजिटिव ते K पॉजिटिव चो किदा साइज बड़ा ते किदा साइज छोटा है? सतवीर K पॉजिटिव दा साइज की है? बड़ा है। लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो K पॉजिटिव दा साइज बड़ा है। उस दे अकॉर्डिंग हाइड्रेशन एनर्जी किदी ज्यादा होगी? सोडियम दी। जिदी ज्यादा हाइड्रेशन होगी ओदी सॉल्युबिलिटी भी की होगी ज्यादा, नेचुरल है। So इस लॉजिक के अकॉर्डिंग solubility is inversely proportional to, sorry, slide में चलो, is directly proportional to hydration energy, डन के नहीं। और जितनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा soluble होगा। हुन देखो रे, हुन आप दोनों चीज़ां च कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, ध्यान नाल सुनो। उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा सॉल्युबल है? KCl। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा सॉल्युबल है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो ये याद रखना है, कोई टामाटोला केस जो आऊगा वो आप देखांगे, बट याद रखना है कि आप लैटिस एनर्जी के हिसाब नाल आंसर करना है, क्योंकि जो चलो आए देसी तरीके नाल याद रख लो कि पहला जे टूटूगा फिर ही हाइड्रेट होगा, जे टूटे ही ना तो हाइड्रेशन जो नौबत ही नहीं आनी। और गल समझ आ गई कि नहीं, ठीक है। चलो आप सिंपल तरीके नाल समझाने हैं। इधर देखो, एक हैगा सोडियम क्लोराइड, एक हैगा मैग्नीशियम। अच्छा एक चीज होर, दोनों चीज़ां हुण प्रॉब्लम कित्थे आंदी है, ध्यान नाल सुनो। हुण देखो रे, ध्यान नाल सुन लो भी इस प्रॉब्लम की है। देखो जेडी सॉल्युबिलिटी है that is directly proportional to hydration energy but inversely proportional to lattice energy। but problem की है कि चाहे lattice energy है ते चाहे hydration energy है, दोनों are directly proportional to charge ते inversely proportional to size,
डन के नहीं हुन देखो NaCl Na positive Cl negative Mg2 positive O2 negative डन सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज छोटा है क्लोरीन के मुकाबले ऑक्सीजन का छोटा है चार्ज भी ज्यादा है सो लैटिस एनर्जी ते हाइड्रेशन एनर्जी दोनों एरिया ज्यादा होंगी सो सॉल्युबिलिटी की ज्यादा होगी डन अपन ने लैटिस एनर्जी के हिसाब नाल आंसर करना है जसप्रीत पल्ले पहली गल ठीक है जी सो जिदी लैटिस एनर्जी घट होगी ओदी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जल्दी टूटूगा देखो नो डाउट जे ये एक बार टूट जाए है ना तेरी हाइड्रेशन बहुत चंगी तरह होगी नो डाउट है ना बड़े टुकड़ों का टाइम है डन क्लियर है ठीक है नाउ सो हुन आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं हुन इधर इस तरह से 3 हो गया देखो इधर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया है ना तेरी तरह लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा ठीक है सो दैट इज व्हाई इन नॉर्मल कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਟੀ ਲੈਟਿਸ एनर्जी ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਡਨ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ AlCl3 plus water ठीक है ਆਪਾਂ ਇਹ +2 ਚ ਕਰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤਾਂ 6 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज तो 3+ ही है ना देखो रे आ स्ट्रक्चर बनया होया ਤੁਹਾਡਾ एल्यूमिनियम एक मेटलॉइड है सिंपल जा वीक मेटल ही है जे ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਧਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਤੂ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟਲॉइड ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ ਗੇਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਮੈਟਲ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स क्लोरीन ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्यूमिनियम ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਹੀ ਗਿਆ +3 है ना ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਨ 6 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਸੋਡੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है एक सेकंड हो गया लग गया मेरा बाबू निकल तो धूप लगेगी और स्मोक ला निकल ना जैसे रखने का एग्जॉस्ट पड़ के खड़ा हो पक्का जा पक्का मुझे
सो अपने को हाइड्रेशन होगी, ठीक है। सो 6 मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रेटिंग एन एल्यूमिनियम आयन, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, जेडी एनर्जी है इट विल बी सफिशिएंट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। डन। ये तीनों Cl नेगेटिव टूट जाएंगे, तो नो डाउट अपने को Al3 पॉजिटिव बनना चाहिए, बट अपने को बन जाएगा एल्यूमिनियम वाटर 6 3 पॉजिटिव। सो एक कैटायन बन गया तो एनायंस बन गए, सो इट इज एक्सिस्टिंग इन आयोनिक फॉर्म। पहले पहली निकल डन होना। सो देखो aluminium forms covalent compound with chloride because of high ionization energy of aluminium. However, when anhydrous AlCl3 is dissolved in water, it undergoes hydration as follows. ठीक है, ये थोड़ा जिहा ठीक कर लो जी, इथे लिखा हुआ है Al2C6 Al2Cl6 कर लो, Al2Cl6, ठीक है। जो एल्यूमिनियम है AlCl3 है, इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर, ये भी अपन करांगे, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो आ गया ना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी। द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। जितनी एनर्जी मतलब लैटिस एनर्जी इनको अपन चाहिए है, देखो उस तो ਵੱਧ है, तो हुन वो आयनाइज कर चुका। This hydration enthalpy removes all the 3 valence electrons of aluminium, leading to the formation of Al3+. This Al3+ is hydrated with water and exists as aluminium water 6 3+. Done. The 3 electrons of aluminium are accepted by chlorine. The hydrated aluminium chloride is thus ionic in character. Done बच्चे? हो गया? हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप कर चुके +1 ते +3। थैलियम विल एग्जिस्ट इन +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर। आ लिखा हुआ है देखो, थैलियम 1 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन थैलियम 3 कंपाउंड्स। डन। आ चीज का पता ना जी अपन देखो, इस चीज से ना कोई कंफ्यूजन होवे, ध्यान ਨਾਲ सुन लो। ਜਦੋਂ भी देखो मोस्टली जिन्ने भी कंपाउंड्स ने दे एग्जिस्ट इन मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ S ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ S ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 1 ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ +1, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ +2। ਜਿਹੜੇ D ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਇਰਨ ਕਾਪਰ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ +2 +3, copper +1 +2। तो सिमिलरली जिਵੇਂ हम थैलियम है +1 +3, ठीक है। जे आप कार्बन फैमिली ते जावांगे देखो टिन लेड +2 ते +4। याद रखना है जेडी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ OUS। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ IC। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਟਲ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ? ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? बोल यार सतवीर। अनमोल कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। अमन इसका नाम की है जी कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप खुद बोल रहे हैं कि ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ मोनोऑक्साइड, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨਸ ਨੇ डाइऑक्साइड।
डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, सो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, सो हम खुद बोल रहे हैं जे मैं सानू कहा कि बच्चे एक फार्मूला लिखो सल्फर ट्राइऑक्साइड, की लिखोगे जसदीप? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सो खुद बोलिया गया ना राजे। हम देखो आयोनिक दे विच चाहे वो ये है, चाहे ये है ते चाहे ये है, इशमी का नाम की है ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰਾਈਡ, ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ, ਮੋਨੋਕਲੋਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਥੋੜੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये करेगा पॉइंट। ये भी आयरन क्लोराइड है, ये भी आयरन क्लोराइड है। तब मैं लिखन से मैं मसला सॉल्व कर लिया। ਇਹਦਾ ਨਾਮ मैं किਵੇਂ लिखूंगा? आयरन क्लोराइड ਤੇ ब्रैकेट्स पा दूंगा 3। ऊपर लेदा आयरन 2 क्लोराइड, मतलब ਜਿਹੜੀ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैं ब्रैकेट्स लिखती ਉਹਦੀ वैलेंसी है ना। पर मैं बोल थोड़ी सकता हूं, मैं थोड़ी बोलूंगा आयरन 3 क्लोराइड, बोल भी सकता है इसका, है ना। बट यस ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ हैं? सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस नाल दूजी एक नाल फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। डन? यस सर। पहले बैठी रहने गल ठीक है ना। OUS एंड IUS। तो देखो यही चीज लिखी हुई है, देखो Tl1 दे नाल की लिखा हुआ है थैलस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन थैलिक कंपाउंड्स। मिल गई रजे लाइन और डन? यस। हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक कैरेक्टर। देखो ये ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵਧੂਗਾ, ਬੋਰॉन नॉन मेटल, अगले दिन मेटलॉइड्स, फिर मेटल। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ते इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, बोरॉन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये आप कर चुके। हाँ जी। नेक्स्ट आर योर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ जी राजे। सो देखो एक्शन ऑफ एयर, सो सारे आपदे आपदे ऑक्साइड्स बनाएंगे, नीचे आने वक्त मेटालिक करैक्टर ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੂਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟਲਸ ਫਾਰਮ ਬੇਸਿਸ, ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਰॉन ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਕਲੀ ਐਸਿਡਿਕ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੀ ਨੇ? ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ। ਇੰਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ। ਥੈਲੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੇਸਿਕ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ नाइट्राइड्स, सिर्फ एल्यूमीनियम ते बोरॉन नाइट्रोजन के नाल रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। चलो ये खास गल नहीं। हाँ जी। हुण अगला टॉपिक आपां ने बहुत चंगी तरह करना है हैलाइड्स, मतलब यही एक क्वेश्चन है जिहड़ा इस ग्रुप दे विचों इंपॉर्टेंट है। हुण ये ध्यान नाल सुन लो। आगे बढ़े। सो देखो हैलाइड्स का क्वेश्चन एग्जाम्स ਲਈ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो पहला आप हैलाइड्स मतलब की होंगे ने कंपाउंड्स विद हैलोजेंस। हैलोजेंस की होंगे ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डन। सो देखो ले अपने को कंपाउंड्स है बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। सो इधर देखो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ BCl3 ਟ੍ਰਾਈਹੈਲਾਈਡਸ +3 ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ AlCl3, GaCl3, InCl3। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਣਗੇ
जिहदे विचों ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन इन्हां विचों नीचे आंदे वक्त इन्हां दा आयोनिक या कोवैलेंट करैक्टर, ठीक है। सो टी थैलियम दे हैलाइड्स विल बी मोस्ट आयोनिक ते बोरॉन दा हैलाइड विल बी मोस्ट कोवैलेंट। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल्स है, जिवें जिवें मेटलिक करैक्टर बढ़ रहे हैं उवें उवें आयोनिक करैक्टर बढ़ूगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स कौन बनाते हैं? मेटल्स। क्वेश्चन अपन को इत्थों नहीं आऊगा, क्वेश्चन कित्थों आऊगा, है ना। फिर दूसरा पॉइंट देखो, तो दूसरा पॉइंट, ऑल दीज आर ल्यूइस एसिड्स। ये तो समझ रहे हो ना, क्यों ल्यूइस एसिड्स में अनमोल है? हाँ बिल्कुल एकदम ल्यूइस एसिड क्यों है? अच्छा, ल्यूइस एसिड हुंदा की है अनमोल? कल भी कितना से अपन बेटा ल्यूइस एसिड की हुंदा सतवीर? हाँ ल्यूइस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड जो बारों इलेक्ट्रॉन्स किसे तो एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज अ ल्यूइस एसिड। ये ल्यूइस एसिड है। सतवीर क्यों ल्यूइस एसिड है? सर क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं? वही पूछे सर, इलेक्ट्रॉन हाँ वही पूछे इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है सर? हाँ दर्शन क्यों है दे सुखमन? सर नॉन मेटल एमटीडी ऑर्बिटल। हाँ जी दे ऑक्टेट पूरा लखवीर? सर डी और ऑक्टेट पूरा है नहीं, डी ऑर्बिटल ऑक्टेट पूरा है नहीं, डी ऑर्बिटल तो बाद दी गल है, ऑक्टेट ही पूरा है नहीं पहला। इन्हां सब दे आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 और 3 इन्होंने क्लोरीन नाल शेयर कर लए, तो हुण इन्हां कोल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 शेयर करके कितने हो गए सतवीर? 6। चाहिए कितने होंगे ने? 8। हले भी 2 की लोड है। हुण क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान नाल सुनो। सो अपने कोल बोरॉन दे ट्राइहैलाइड्स दा फार्मूला बनया BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3, ठीक है। नो डाउट सारे ल्यूइस एसिड्स है। क्वेश्चन इज केड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड है ते केड़ा वीकेस्ट ल्यूइस एसिड है। मतलब एकदम क्वेश्चन ये आऊगा कि बोरॉन दे ट्राइहैलाइड्स चों केड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट है या केड़ा वीकेस्ट है। नेचुरल है Bi3 ते BF3 चों एक स्ट्रॉन्गेस्ट है ते एक वीकेस्ट है ना, अपन का ऑर्डर ही याद करना है, ठीक है। हुणे सुन लो दे किवें देखो, हां बोल दे Bi3 की है स्ट्रॉन्गेस्ट के वीकेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट। चलो ठीक है, किस लॉजिक दे नाल? क्योंकि सर आइदा वो ज्यादा मतलब होगा, रेडियस ज्यादा होगा। अच्छा ना वो ज्यादा वो नहीं करोगी, की नहीं करोगी? चलो आ जाओ, ये पहले करोगी। आ जाओ बेटा। सो देखो रे, नॉर्मली बच्चों का आंसर इस दे विच की हुंदा है BF3 कि BF3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड। सुनो ध्यान नाल, देखो ना फर्क की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर चों सिर्फ 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ओदे विचों सोडे सिलेबस नहीं सिर्फ यही, क्योंकि बाकी ना आउट ऑफ सिलेबस है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है बोरेन दा स्ट्रक्चर, वो आप करांगे बट ठीक है। BH3 दा स्ट्रक्चर, तीसरा होता है BH3 दी रिएक्शन विद अमोनिया। बस आखिर 3 क्वेश्चन है जेदे जो आएंगे, ठीक है। तो देखो देखो, सो दिस इज BF3 डन। BCl3 की अर्दे बस क्लोरीन का साइज बदलने नाल थोड़ी जी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। BBr3 बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, साइड ठीक कर दे, ठीक है। और पल्ले पै गया, हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, सो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। आ सीन है अपने कोले, है ना। हुन देखो इधर सब दे विच
अपने को 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके डन ठीक है राजे सो बाहरों अपन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की लोड है डन ठीक है बट वो 2 इलेक्ट्रॉन्स राजे उदों मिलणगे ना जो होणगे किसी को जिन्ना चिर है नहीं उन्ना चिर अपन कुछ तो करना ही पऊ मेरी गल समझ आई कि नहीं देखो ये तो सबको पता है ना कि BF3 कंपाउंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उदों लऊगा ना जो कोई देने वाला होगा उन्नी देर तक तो ही है जिवें हुण आपां कहने हैं इधर देखो ध्यान नाल कि सोडियम कोल 1 इलेक्ट्रॉन फालतू हुंदा है क्लोरीन कोल 1 इलेक्ट्रॉन घट हुंदा है ते दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेंदे हैं ये तो पता ना अपन ठीक है बट जितनी देर तक देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नु ताही देऊगा ना जे क्लोरीन आउगी कोले ते क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ताही लऊगी ना जे सोडियम देऊगा सोडियम होऊगा जितनी देर तक क्लोरीन है नहीं सोडियम किवें एग्जिस्ट करदा है एज ए मेटल सोडियम एक मेटल हैगा ਤੇ क्लोरीन ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਮਿਲ ਕੇ 2 NaCl ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ठीक है कला Bi3 is the strongest acid कह के गल सकती नहीं ये क्वेश्चन कट हो गई सर अच्छे बेटा सुन ले a person should be a very good listener ठीक है राजे यही स्ट्रक्चर है ना हेलोजेंस कोले लोन पेयर्स पे है ठीक है जिन्नी देर तक अपने कोल कोई एहो जी स्पीशी नहीं आंदी जिहदे कोल 2 इलेक्ट्रॉन्स है उन्नी देर तक तिन्ना विचों कोई भी एक हेलोजन अपना एक पेयर इसनू दे दूंगा ठीक है सो सपोज इन्हें देता हेलो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं और ठीक है कि नहीं नो डाउट तुसी कहोगे कि सर आही वाली फ्लोरीन क्यों 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे 1 2 ते 3 हां हुण मैनूं एक आंसर दे दो स्ट्रक्चर्स नू देख के कि आ पेयर देना फ्लोरीन नु सौखा लग रहा है देख के कि क्लोरीन नु सौखा लग रहा है हां फ्लोरीन क्योंकि नेड़े है बॉन्ड लेंथ छोटी है सो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ बैक बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग होगी ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਜੀ होगी ਇੱਥੇ ਬਾਵਾ ਹੀ ਵੀਕ ਜੀ होगी है ना सो 12 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੈਣ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਰਜੇ ਗੱਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ among the trihalides of boron Bi3 is the strongest Lewis acid due to very weak back bonding ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ back bonding ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Bi among the trihalides of boron Bi3 is the strongest Lewis acid, full stop. This can be explained on the basis of back bonding. इन्हों पर back bonding बोलते हैं राजे ठीक है क्या आप explain किमें करेंगे आप कहेंगे कि all the trihalides of boron are Lewis acids due to the deficiency of electrons ठीक है however any one halogen atom donates its one pair of electrons to the boron ठीक है completing its octet this concept is called back bonding ठीक है फिर आप लिखेंगे the back bonding is strongest in BF3 while weakest in Bi3 so Bi3 is the strongest Lewis acid and BF3 is the weakest Lewis acid and done पहले मैं क्या करेगा हो गया आ जाओ जे कुछ नोट करना है कर लो जे कुछ लिखना है लिख लो है ना फिर ਆਪਾਂ नोट्स तो करके आगे चलिए
यही चीज देता भी रेडियस ही काफी ज्यादा होगा बट रजे एक्सेप्ट किने करना है Bi मतलब आयोडीन ने करना है कि बोरॉन ने गेम खत्म नहीं बट उत्तर क्वेश्चन काफी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बहुत नेड़े नेड़े पए हैं अच्छा ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ हाँ फिर आप यही कह रहे हैं कि रिपल्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करूंगा हाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं फिर रिपल्शन होगा नहीं नहीं जेड़ा चीज सही है वही लिखोगे याद जिवें मर्जी कर लो नंबर तो उसने मिल लेना जेड़ी चीज हैगी है एक्चुअल डन बजे हाँ जी सो दिस इज मेंशनड सो आ देखो दे halides of boron all are covalent in nature and exist in the form of a monomer hybridization of boron in BCl3 या BX3 X की अरे इथे कोई भी हाइड्रोजन is sp2 boron trihalides act as Lewis acids ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਬਦੇ ਚਲੋ ਆ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੈ ਦੇਖੋ on the basis of electronegativity of halogen atoms BF3 should have maximum Lewis acid character है ना and Bi3 should be least but actual trend की है आ trend लिखा हुआ है और तो बाद अगले दो पैराग्राफ्स च वो सब कुछ लिखा हुआ है जो सोनू एक्सप्लेन किया है हो जाएगा ठीक है हाँ जी आगे देखो explain why BX3 does not exist as a dimer इस क्वेश्चन का मतलब की है इधर देखो अभी अनमोल इधर देखो सो देखो दे जिवें हुण आपां AC ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ठीक है BH3 ਤੇ AlCl3 ध्यान ਨਾਲ सुनो BH3 ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਮਿਲੂਗਾ ਆਏ BH3 बन गया ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਾ ਬੈਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ H ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ BH3 ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰਿਜਸ ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ B2H6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਮਰ ਡਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ AlCl3 AlCl3 हाँ जी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਊਗਾ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜਸ ਡਨ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਹਲਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬੈਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ out of it. So यही बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ BF3 ਔਰ BF4- ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ BF ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ BF3 डन आ BF4- है कि BF3 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ क्या बन गया
और डन के नहीं सो ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ जबकि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ BF ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ BF4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ BF3 ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ why BF bond length in BF3 is shorter than BF bond length in BF4 minus done with it आगे एल्यूमीनियम ਦੇ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟਸ ਦੇਖੋ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਡਾਈਬੋਰੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 14 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰੋਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ